Good morning, everyone. In previous class, we have discussed about integers. Clear? Today, we will discuss addition and subtraction of integers. Clear? Today, we will discuss properties of addition and subtraction of integers. Clear? Class 7th chapter 1st. Clear? Properties of addition and subtraction of integers. First property is closure property. First property is closure property. Closure property means when we apply on integers addition and subtraction, then we get the sum and difference integers. Clear? Closure property, so that means addition and difference and subtraction are closed under इंटीज तो आप राइट कर लो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड subtraction. Clear? Integers are closed under addition and subtraction. अपन एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. ठीक है. When we add two numbers we'll add two numbers are 8 plus 3. तो we get answer 8 plus 3 11. So we see that 8 is an integer. Clear? 3 is an integer. And the sum is also a integer. Clear? That means when we add two numbers 8 plus 3 we get 11 and 8 is an integer. That means when we add two integers sum is also a integer. This property name is closure property. Second example अपन subtraction का भी डिस्कस कर लेते हैं. When we subtract two numbers. Clear? When we subtract two numbers 3 minus 2, answer is 1. So we know that 3 is a integer, 2 also a integer. Clear? And 1 is a integer. That means when we find the difference of two integers, then difference is also a integer. That means subtraction and addition follow the closure property. Clear? Follow the closure property. Clear हुआ? आप जब अपन एडिशन की बात कर रहे हैं तो we apply the addition on these two integers, then sum is also a integer. And when we find the difference, then difference is also a integer and these numbers are integer. This property name is closure
property. Clear? Now note down next property. Second number is, next is commutative property. ठीक है, commutative property की यदि अपन बात करें तो integers are commutative under addition. Clear? Integers are commutative under addition, and integers are not commutative under subtraction. Clear? Commutative property means, commutative property, integers are commutative under addition and integers are not commutative under subtraction. जैसे आपके पास में एग्जांपल से क्लियर होगा. फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एडिशन की. We'll add two numbers 9 and plus 8. 9 plus 8 equals to 17, and commutative means होता है change the these numbers. That means 8 change the position of these numbers. 8 plus 9. 8 plus 9 is 17. ठीक है, दैट्स मीन्स क्या हो गया आपके पास में 9 plus 8 equals to 8 plus 9. Therefore इसी का मीनिंग क्या हुआ, a plus b equals to b plus a. This property is commutative property. क्लियर? आंसर आपके पास में क्या आ रहा है, इसका 17 आ रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ, 9 plus 8 equals to 17. Commutative means होता है change the position of numbers. That means put at the place of 9 and 9 at the place of 8. यानी change the position of numbers. Commutative means होता है change the position of numbers. 9 plus 8 equals to 17. Now we change the position of numbers. 8 plus 9 equals to 17. So we see that 9 plus 8 equals to 8 plus 9. Therefore a plus b equals to क्या हो गया आपके पास में b plus a. This is the commutative property. Now we take next example for subtraction. ठीक है, this is the example of addition. Now we take example of subtraction. We subtract two numbers 8 minus 3 equals to 5. Now we change the position of numbers. When we change the position of numbers, so we see that this one is minus 3 and this number is positive number, so we write plus 8 equals to, answer क्या होगा, we subtract 8 minus 3. This is the minus 3 plus 8. When we subtract 8 minus 3, क्लियर हो रहा है, 8 minus 3, आंसर क्या हो गया आपके पास में 5 हो गया. व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स. ठीक है, एक मिनट. इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपके पास में 5.
तो यहाँ से आपके पास में क्लियर हो रहा होगा कि अपन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 - 3 इक्वल्स टू 5 एंड व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर्स। तो 1 मिनट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन नंबर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो नंबर इज ओनली 3 एंड दिस वन इज 8, वो वी चेंज द पोजीशन ऑफ only numbers 3 and this one is -8, we get -5। क्लियर हुआ? ओनली वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर्स, साइन के चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। ओनली वी चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स। तो दिस इज द 3, ये तो डिफरेंस को शो कर रहा है नेगेटिव साइन, 3 एंड -8 इक्वल्स टू आंसर इज -5। इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर 8 - 3 नॉट इक्वल टू 3 - 8। देयरफॉर एडिशन A - B नॉट इक्वल टू B - A। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्लियर हो रहा है, देखो 8 - 3 इक्वल्स टू 5, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स वी गेट 3 - 8 इक्वल्स टू -5, A - B not equal to B - A, we let this is the A and this one is B, now B A, तो here A - B not equal to B - A, this is the commutative property of subtraction। क्लियर हो गया? इसका मीनिंग क्या हुआ? एडिशन आर कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन अंडर एडिशन एंड इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल आपके पास में सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है और ये एग्जांपल आपके पास में एडिशन का एग्जांपल है। क्लियर हो गया आपके पास में? एडिशन, integers are commutative under addition and integers are not commutative under subtraction। Clear? Okay, now we discuss next property। Next, third number is associative property। For associative property we required 3 numbers। क्लियर है? एंड फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी रिक्वायर्ड 2 नंबर्स। क्लियर है? एसोसिएटिव की मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा? सेम वही, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। And integers are not associative under subtraction। Clear? Associative property, integers are associative under addition and integers are not associative under subtraction। ठीक है? For associative property we require 3 numbers। Clear? Now we take example for addition। ठीक है? एडिशन के लिए यदि अपन बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं, तो वी लेट 3 numbers 5 + 7 + 3। क्लियर? तो यहाँ से आप ऐड करोगे, फर्स्ट वी ऐड 7 + 3। ठीक है? तो इसका आंसर आपके पास में क्या गिवन होगा? 5 + इसका मीनिंग क्या होगा? इम्प्लाइज दैट 5 + 7 + 3 10 इक्वल्स टू 15।
Now we solve 5 plus 7. Now we add first 5 plus 7 equals to 3. तो we get 5 plus 7 12. 12 plus 3 equals to 15. क्लियर हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? Therefore 5 plus 7 plus 3 equals to 5 plus 7 plus 3. ठीक है? Therefore associative properties A plus B plus C. Let three numbers are A, B and C. If we talk for general, A plus B plus C. This property is called associative property. That means for addition की बात हो रही है. For addition अपन associative property की बात करें तो first we add these two numbers A plus B plus C, and now we add 7 plus 3 10 plus 5 equals to 15. And when we add these in starting 5 plus 7 plus 3, तो भी आंसर क्या हो रहा है? 15. इसका मीनिंग क्या हुआ? चाहे आप पहले B प्लस C को ऐड करो या A प्लस B को ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसका मीनिंग इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन. नाउ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल फॉर सब्ट्रैक्शन. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सब्ट्रैक्शन. अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ. देखो अपन 3 नंबर्स राइट कर लेते हैं. अपन राइट कर लेते हैं 7. विल टेक 2 नंबर. सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है. 7 माइनस 5 माइनस 3. क्लियर? तो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स 5 माइनस 3. तो वी सी दैट 7 माइनस 5 माइनस 3. फर्स्ट वी सोल्व ब्रैकेट. 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, and when we subtract 7 minus 2 equals to 5. Now by associating property, now we subtract 7 minus 5 minus 3. ठीक है? आपने क्या किया? इनकी पोजीशन चेंज कर दी. 7 minus 5 minus 3. तो we see that क्या हो गया? 7 minus 5. When you subtract 7 minus 5 you get 2 minus 3. Answer is 3 minus 2 1, and we write negative sign. Region numerical value of negative sign is greater in comparison to positive value. तो आंसर क्या हो गया वहाँ से? -1. तो ये 5 आ रहा है, ये -1 आ रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ? 7 minus 5 minus 3 not equal to 7 minus 5 minus 3. Therefore A minus B minus C not equal to A minus B minus C. This is the associative property for subtraction of integers. Clear हुआ associative property? Associative property means integers are associative under addition and integers are not associative under subtraction. आप addition के लिए देखो चेक कर रहे हो. First we add these two numbers and now we add these two numbers. तो answer is same. Now first we subtract these numbers and after that we subtract this number. ठीक है? तो यहाँ से आप देख रहे हो आंसर में डिफरेंस आ रहा है. इसका मीनिंग A माइनस B माइनस C नॉट इक्वल टू A माइनस B माइनस C. दैट्स मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. क्लियर? नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट 4th नंबर इज identity property. Next is identity property. Identity property का मीनिंग होगा आपके पास में identity property only for, ये property only for addition. Identity property for
एडिशन, ठीक है, ये अपन एडिशन के लिए ही डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है, फॉर एडिशन की अपन बात कर रहे हैं। एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स ए नंबर व्हेन वी ऐड इन ए गिवन इंटीजर देन सम इज द सेम नंबर, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जब आप जीरो को किसी नंबर में ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी इंटीजर में आप ऐड कर रहे हो, तो देयर इज नो चेंज इन द इंटीजर, देयर इज नो चेंज इन द इंटीजर, देयरफॉर दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मीनिंग है व्हेन वी ऐड ए नंबर इन द गिवन इंटीजर देन देयर इज नो चेंज इन द नंबर, तो देन द एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से यदि अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अभी यदि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की इसकी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जैसे 5 गिवन है, ठीक है, 5 में आप क्या ऐड करो जिससे आंसर आपके पास में 5 ही आए, तो जब आप 0 ऐड करोगे तो आंसर आपके पास में 5 ही आएगा। ऐसे में सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, आपके पास में -4 गिवन है, -4 इज ऑल्सो इंटीजर, व्हेन यू ऐड 0 देन आंसर इज -4, यानी आंसर जो नंबर आप ऐड कर रहे हो ना उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये है आपके पास में कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो ये नोट करके आप पॉइंट राइट कर लो, नोट करके पॉइंट राइट करो, 0 इज एडिटिव Zero is additive identity. 0 is additive identity for integers. 0 is additive identity for integers. इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप 0 को ऐड करोगे, ठीक है, किसी भी नंबर में, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी देयर इज नो चेंज इन द नंबर। क्लियर? इसका मीनिंग ये हो गया कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। क्लियर है? ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट नोट करके सेकंड पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट राइट करो आप, नोट करके पॉइंट राइट करो, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a is -a. Additive inverse of an integer a is -a, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a is -a। देयरफॉर यदि अपन बात करें एडिटिव इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू -a। अपन एग्जाम्पल की भी बात कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू -9। सेकेंड एग्जाम्पल भी अपन बात कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -15 इक्वल्स टू 15। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह है कि जब अपन
इंटीजर्स और इसी के एडिटिव इन्वर्स को अपन ऐड करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 0. व्हेन वी ऐड एन इंटीजर एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर देन आंसर इज 0. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके सबके? क्लियर है सबके प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? ठीक है, फर्स्ट ये सेम प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दीज प्रॉपर्टीज आर सेम इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एंड फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग हो रहा है कि वो नंबर अपन ऐड करें जिस नंबर के ऐड करने से इंटीजर्स पे कोई चेंजेस ना हो. तो वो नंबर क्या है? 0. तो 0 को अपन ने क्या राइट किया? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग होता है आपके पास में कि आपको जो नंबर आपको गिवन है उस गिवन नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो जिससे उसका सम क्या हो जाए? 0. तो एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग हो रहा है आपके पास में एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इक्वल्स टू -a. इसका मीनिंग पॉजिटिव नंबर था तो उसका नेगेटिव नंबर राइट करना है. नेगेटिव नंबर आपको गिवन हो तो उसका पॉजिटिव नंबर राइट करना है. भाई 5 में आप क्या ऐड करोगे तब आपके पास में सब्ट्रैक्शन वो एडिशन 0 होगा, सम 0 होगा. -5 आप ऐड करोगे. ऐसे आपके पास में जब एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9 आपको गिवन है तो इसमें आपको क्या ऐड करना है? -9. तब आपके पास में इसका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ वी सॉल्व योर एक्सरसाइज 1.1. क्लियर? ओके. एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन से पहले अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. जैसे आपके पास में क्वेश्चन गिवन हो, आपको क्वेश्चन इस टाइप से गिवन हो, आपको सॉल्व करना हो. ठीक है, अब तक अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया है. आपके पास में क्वेश्चन इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन पहले. आपको गिवन हो 5 + 5 + 3 + 8, ये आपको गिवन हो. इसका मीनिंग आपको क्या करना है? सिंपल एडिशन करना है. 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21. तो ये आपके पास में सम हो गया. इजी है, ओके. ठीक है, 5 + 5 + 3 + 8 इक्वल्स टू सम क्या हो गया आपके पास में? 21. अब आपके पास में ये तो एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन गिवन हो 25 - 20. ठीक है, आंसर क्या होगा? 25 - 20. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 25 यू गेट आंसर 5. थर्ड एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड में थर्ड एग्जाम्पल आपके पास में इस टाइप से गिवन हो 20 - 25, इस टाइप से वैल्यू गिवन हो. -20 + 25, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ से आपके पास में क्लियर हो रहा होगा -20 + 25 कोई चेंजेज नहीं है. आपको सिंपल चेक करना है कि नंबर आपको पॉजिटिव नंबर गिवन है या नेगेटिव नंबर गिवन है. तो आपके पास में ये देखा आपने, जैसे इस वाले सेकंड एग्जांपल की बात करें 25 इज ए पॉजिटिव नंबर एंड 20 इज ए नेगेटिव नंबर. भाई इसके साइन आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन आप कैसे करते हो? जो नंबर आपके पास में गिवन है उस नंबर से पहले जो साइन गिवन हो वो नंबर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. यहाँ से कोई साइन गिवन नहीं है या कोई साइन गिवन नहीं है, इसका मीनिंग 25 इज ए पॉजिटिव नंबर. दिस वन इज -20 इज ए नेगेटिव नंबर. तो दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर, दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर. इसका मीनिंग क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिफरेंस होगा. ठीक है, 25 - 20 इक्वल्स टू 5. ऐसे में बात करूँ यहाँ से देखो दिस वैल्यू इज, दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर एंड दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर. तो 1 नंबर पॉजिटिव नंबर गिवन है, 1 नंबर नेगेटिव नंबर गिवन है. तो इसका मीनिंग क्या होगा? होगा तो डिफरेंस ही. अब आपको पता है डिफरेंस कैसे होगा? वी सब्ट्रैक्ट ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम
ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर 25 है, स्मॉलर 20 है, तो 25 में से 25 में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 20 डिफरेंस इज 5। इसका मीनिंग इसमें और इसमें राइट आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ओनली नंबर्स का अरेंजमेंट चेंजेज हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं 4 की बात करूँ, क्वेश्चन आपको इस टाइप से गिवन हो, क्वेश्चन आपको इस टाइप से गिवन हो 20 माइनस 25, इस टाइप से क्वेश्चन आपको गिवन हो, तो हेयर 20 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड 25 इज अ नेगेटिव नंबर, 25 इज अ नेगेटिव नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब आपको पता है आप 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर तो 5 ही आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। पर 5 आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है अपने पास में, डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइन इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होगी उसी का साइन आप यूज़ करोगे, इसलिए यहाँ साइन क्या आएगा आपके पास में -5। 20 माइनस 25 इक्वल्स टू -5। 5 नंबर एग्जाम्पल आपको गिवन हो -20 एंड -25, तो आंसर क्या होगा। अब आपके पास में देखो -20 एंड -25 आपको गिवन है। अब आपको पता है ये नंबर भी नेगेटिव नंबर गिवन है, ये नंबर भी आपके पास में नेगेटिव गिवन है। अब आपको पता है कि सेम साइन नंबर आ रहे हैं, ये भी नंबर आ रहा है, ये भी नंबर आ रहा है। डिफरेंस के लिए तो आपके पास में 1 नंबर शुड बी पॉजिटिव एंड 1 नंबर शुड बी नेगेटिव, बट हेयर बोथ द नंबर आर नेगेटिव नंबर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिफरेंस तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ अपन ने क्या किया था, देखो 5 + 5 + 3 + 8, आपने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। भाई ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि ये भी प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसका मतलब ऑल नंबर्स क्या हैं आपके पास में, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या हो रहे हैं, आपने ऐड करके आंसर राइट कर दिया 21। ये जो नंबर्स हैं ना, दीज ऑल नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब ऑल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स हों तो ये भी क्या होगा आपके पास में, एडिशन ही होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम साइन नंबर क्या होते हैं, ऑलवेज एडेड होते हैं। सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड, सेम साइन नंबर में बी पॉजिटिव एंड सेम साइन नंबर में बी नेगेटिव। डिफरेंस ओनली 1 कंडीशन में पॉसिबल है, व्हेन 1 नंबर इज पॉजिटिव नंबर एंड 1 नंबर इज नेगेटिव नंबर। -20 एंड -25, तो ये नंबर ऐड होगा 20 और 25 एंड 20 को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 45 आएगा। अब ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो ये भी आंसर भी आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपके पास में क्लियर हुआ होगा कि आपके पास में जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन का मीनिंग ये होता है कि उसमें सेम साइन नंबर होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड एंड ऑपोजिट साइन नंबर, 1 नंबर इज पॉजिटिव एंड व्हेन 1 नंबर इज नेगेटिव देन वी फाइंड द डिफरेंस। क्लियर हुआ आप सभी के, -20 एंड -25। अब मैं एग्जाम्पल 6 अपन डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास में एडिशन भी गिवन हो और सब्ट्रैक्शन भी गिवन हो। ठीक है, अपन देखो ये जो वैल्यूज है वो अपन स्मॉलर वैल्यूज राइट कर रहे हैं, चाहे या आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर चाहे वैल्यू ग्रेटर हो चाहे स्मॉलर हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एग्जाम्पल 6। इफ वी टेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कंबाइन, तो वी स्मॉलर नंबर से राइट कर लेते हैं अपन। 5 + 10 - 15 + 20, आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें आपको एडिशन भी गिवन है और सब्ट्रैक्शन भी गिवन है। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट वी ऐड सेम साइन नंबर 5
+10 और +20 ये सेम साइन नंबर है, इनको आप पहले ऐड कर लो। 10 + 5 15 और 15 में 20 ऐड कर लो, 25 35 ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर आप एज इट इज ऐसे राइट कर लो। इन नंबर्स को सेम साइन नंबर्स को आपने ऐड करके राइट कर दिया। 10 + 15 में आप 20 ऐड करोगे तो पहले 10 ऐड कर लो, 25 फिर 25 में 10 ऐड करो 35 माइनस 15 आंसर क्या हो गया आपके पास में 20। क्लियर। एग्जाम्पल में 7 की बात करूं, -5 -10 +15 -20 ये वैल्यूज़ आपके पास में गिवन है, इसको आप सोल्व करोगे। अब आपने देखा कि ये भी नंबर नेगेटिव नंबर है, ये भी नंबर नेगेटिव नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, तो आपको पता है सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड। -5 -10 एंड -20 साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये चेक करना है कि ये सेम साइन नंबर है, सेम साइन है तो ऐड होंगे। तो 10 और 5 15 में आप 20 ऐड करोगे 25 35 आएगा और साथ में क्या होगा नेगेटिव। भाई जब सभी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी सम भी क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा, +15। नाउ यू ऑब्जर्व दैट दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। अब डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कैसे होगा, आपको नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। 15 यानी 35 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 35 इज ग्रेटर इन कंपेयर टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर। 35 - 15 इक्वल्स टू 20 आएगा, पर साइन क्या आएगा आपके पास में नेगेटिव आएगा। रीजन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर इन कंपेयर टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द नंबर। ऐसे में 1 एग्जाम्पल अपन और राइट कर लेते हैं। -10 + 5 -15 +15। क्लियर। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखो वही सेम मेथड, सेम साइन नंबर, ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है, सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड। दिस इज ए नेगेटिव वैल्यू एंड दिस वन इज ऑल्सो ए नेगेटिव वैल्यू। तो 10 एंड -15 -25, this one is positive and this one is positive, +15 and this one is 20. Now 20 - 25 -20 we get 5, but numerical value of this number is greater, तो we write negative sign। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस अपन ने अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस में ओनली आपके पास में अपन ने स्मॉलर नंबर्स लिए हैं, तो आपको स्पेशली देखो इंटीजर्स में आपको साइन का स्पेशली ध्यान रखना है कि आंसर आपके पास में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए अपन ने ये स्मॉलर डिजिट्स राइट की है। एक बार आपके पास में स्मॉलर डिजिट्स में आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके पास में आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन जो भी अपन ने 8 क्वेश्चंस किए हैं, इन 8 क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप बार वापस से अपने वीडियो को वापस से देख लेना। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और आप जो एक्सरसाइज है आपके पास में 1.1 उसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करना। अपन उस नेक्स्ट क्लास को वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।